Hey Stefam, what's up? Welcome to the Mommy's Talk. Today we are going live with a very special guest. She's basically from Delhi, but presently she's in London with her husband and a sweet little cute naughty kid named Taksh, and he is just 20 months old. She is anyhow taking out time and coming on our live session just to speak on a very important topic for all moms, or to be moms in fact, because moms, they have already dealt with this 15 days after sanity. But yeah, obviously you can guide many other to be moms, or whosoever if they are going to be pregnant or anything like that. You can tell them about this, how to regain back sanity after 15 days of delivery only. So let's invite our guest. Hey, hi Manisha. What's up? Hi Nidhi, how are you? I So, am good. hello How are you? everyone. She is Manisha, and on Instagram handle she is named by Touch and Mama's Corner. Do visit her page. Just a second. Okay. And she has got awesome parenting tips. Manisha, is my voice audible? I'm sorry Yes, about yes, you are. you. No, it's okay. You are audible. Am I audible there? Yeah. Or Clearly. am I too loud or No, no, okay no, now? no, no. In fact, I guess I'm too loud. You're very soft. No, no, you are soft too. Okay, so please introduce yourself to our audience. I have already introduced just as Manisha and Taksh I have introduced to everyone, but I want you to introduce yourself. Okay. Hello everyone. I am Manisha Toshniwal. I am currently SHM. I am here in London now and I am from Delhi. And I have very naughty boy Taksh who is 20 months old now. He will be 20 months tomorrow. Oh, So what wow. more you want to Happy know about 20. me? Okay, So so yeah. life after mommy, if you want to share something about your life after being a mommy. My life after being a mommy is very interesting. It is like a roller coaster ride now. Yeah. And I'm enjoying this period. I have never imagined that my life will be like this after having a baby. Taksh has shown me all the colors of life now. Yeah. Okay, and how about coming into blogging on Instagram? See, I have never thought that I'll do blogging. I had no confidence on my writing skills. So, my sister opened this page for Taksh. Okay. She created this page to upload Taksh photos. Then she left this page and I took over it in Okay. July or August, I guess. Then I used to read these blogs from wonderful mommies. Our tribe is very good here on Insta. They are very helpful. So I also thought of sharing my experiences. And Okay. then now I'm enjoying this so much. Okay, so let's come to the topic. Today's topic is sanity after 15 days after delivery. There are many Yeah. people who got confused between sanity and sanitary. So please explain it to them. What is sanity actually? See, after delivery, our life changes completely. So we get totally mental. मतलब मैं तो हो गई थी. I used to behave like Monjolika. I used to roam Okay. around from one room to other room. मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं. मैं पूरे अपनी Okay. दुनिया में थी. सो Okay. प्रेगनेंसी के टाइम भी आई यूज टू थिंक कि मुझे कोई ऐसी गाइड मिल जाए जो मैं फॉलो कर लूँ एंड विच विल बी इजियर फॉर मी आफ्टर डिलीवरी. सो इतने थॉट्स थे मेरे माइंड में. सो आई वांटेड टू राइट ऑन दिस टॉपिक कि Okay. बिकॉज क्या होता था प्रेगनेंसी में जब मैं किसी लाइक मैं मॉमीज को पूछती थी कि मुझे कोई लिस्ट दे दो न्यू बॉर्न की. सो उस टाइम पे मुझे इतने सजेशंस मिलते थे कि यार सजेशन यानी काम के नहीं लगे मुझे. ऐसे सजेशंस मिले कि यार लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी, बहुत ओवरवेलमिंग होता है, रात को सोने नहीं मिलता है.
तो उस टाइम ओके। तक उस और टाइम ज्यादा तक आई स्ट्रेसफुल वाज सिचुएशन। हाँ, उस टाइम तक आई वाज नॉट अवेयर कि बच्चे को आपको 2 2 आवर्स में फीड भी कराना है। मेरे माइंड में ये थॉट था कि शायद बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं इसलिए रात को उठ जाते हैं और फिर पेरेंट्स को उनको देखना दैट्स व्हाई यू हैव पड़ता है। टू वेक अप। हाँ हाँ बट हाँ। मुझे ये बिल्कुल ही नहीं पता था, सच में मैं इतनी फूल थी, मुझे ये नहीं पता था क्योंकि तब फर्स्ट न्यू बॉर्न था जिसको मैंने अपने हाथ में लिया। लाइफ मैंने में अपने लेके फैमिली आया। में भी किसी को देखा नहीं था। ओके ओके बड़े ओके। बच्चों को ही देखा था, तो मुझे एक हम्म न्यू बॉर्न की लाइफ कभी पता ही नहीं थी। तो हम्म जब ऐसे सजेशंस मिलते थे तो मुझे ये लगता था यार कुछ ऐसा बताओ ना कि मुझे सब कुछ पता हो, मुझे ऐसा ना लगे कि आई एम लेस नॉलेजेबल और मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि जब आपको दिमाग में ये होता है ना कि आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम्म अब आप इतना पैनिक कर जाते हो ना, जैसे और बहुत पैनिक कर जाते हो। सो हम्म बस मुझे ये था कि मैं कोई ऐसी गाइड बनाऊं जिसमें A to Z सब कुछ लिखा हो। जो हम्म प्रेगनेंसी में यू स्टडी यू सर्च, तो उससे आपकी लाइफ इतनी इजी हो जाए। लाइक इफ आई एम लाइंग ऑन माय रिकवरी बेड और बच्चा मेरा साइड में रो रहा है, सो हम्म मैं पैनिक ना करूं, मुझे पता हो कि फैमिली इज हियर टू सपोर्ट मी, माय हस्बैंड इज विद मी, या। डॉक्टर्स आर देयर। तो और मुझे मतलब मैं बस ये चाहती थी कि बाकी न्यू मॉम्स भी वेल अवेयर हो कि क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स होती है, बस पैनिक ना करो। या एक गाइड, गाइड गाइड होनी बेसिकली। चाहिए बेसिकली, बस मुझे ये या था जिसमें सब पता हो। लाइक मैंने ये देखा था जब जैसे तक शादी ननाई थी, वी वॉज बोर्न प्री मैच्योर, तो मुझे ऐसा या था या। कि हाँ, तो उसको जब मुझे मिल्क भेजना था, तो आई वॉज नॉट अवेयर हाउ टू एक्सप्रेस द मिल्क। फिर हम्म। वन डे जब डॉक्टर राउंड पे आई तो डॉक्टर से पंप ले लो, तो मुझे नहीं पता था पंप क्या होता है। सीरियसली आई वॉज दैट डम। तो या पंप, आई टोल्ड माय हस्बैंड पंप लाना है। अब ही वाज द केमिस्ट शॉप, तो ही सेड पंप तो दो तरह के आते हैं, इलेक्ट्रिक भी होता है मैनुअल भी कौन होता सी? है, कौन सा मैनुअल। पंप लूं? अब मुझे खुद को नहीं पता था कौन सा पंप लूं। दोनों ही पंप अपनी तरह से बेस्ट है, जो आप अफोर्ड कर सको वो आप लो, जो आपके लिए ज्यादा सुटेबल हो। बट तब मुझे नॉलेज नहीं था और मुझे ये भी समझ नहीं आया कि मैं किसको पूछूं। तब आई वॉज नॉट ऑन इंस्टा या कोई मॉमी ब्लॉगर, ऐसा भी चीज मुझे पता नहीं थी, या फैमिली में भी किसको हम्म पूछूं नहीं समझ आ रहा था। मैं खुद हॉस्पिटल में थी, तो हस्बैंड ने जब पंप उसने लाया, फिर हम मुझे ये नहीं पता था एक्सप्रेस कैसे करते हैं, कौन सी बॉटल यूज करते हैं, हाउ टू स्टोर द एक्सप्रेस्ड मिल्क। सो बस तब से मेरे दिमाग में ये था कि यार मैं भी कोई कुछ ऐसा लिस्ट बनाऊं जो लोगों को हेल्प हो, जो हेल्प पहले मिल गया। ही मॉम हु इज एक्सपेक्टिंग, शी इज वेल अवेयर, सी शुड नो कि क्या करना होता है, क्या एक चीज प्री क्या होती है। नॉलेज होना चाहिए, यस, बिफोर डिलीवरी। या। यस। Okay, okay. So there are some queries which I came across after putting this on my story. So, Acha, are we going to talk about this sanity after 15 days of delivery? This is this about C-sec or normal delivery, or is it common for both? I feel it works best for full-term delivery, whether C-section or normal doesn't matter, because Okay, it okay, is okay. about the sanity of a mother. Okay, 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 okay. So, there's a first query. It says, should we be with our parents right after delivery? See, be with someone with whom you are comfortable. Comfortable, Like yeah. I was more comfortable with my in-laws. My mother-in-law pampered me like anything. She was very Okay. supportive and very Lucky. caring. Yeah. And Okay. there was not good facilities, medical facilities at my mom's place. So Yeah. फिर भी my best choice was my in-laws home because my husband was there with me. Okay. Yeah. My family is very caring, my in-laws family. So I was Mhm. very comfortable there. Okay. Okay. So you chose to be in your in-laws family with your in-laws Yeah, family. so I would say be with someone where you are comfortable. Doesn't Mhm. matter कि in-laws ही हो या Comfortable as मम्मी हो, in mentally also, right? मेंटली फिजिकली मेडिकल कंडीशन जहाँ पे अच्छी हो। Yeah. Yeah. हाँ, चाहो हाँ, तो हाँ. आप मतलब आई वुड सजेस्ट कि अगर इफ यू फील बेटर एट योर फ्रेंड्स प्लेस ना, वहां जाओ। इफ यू फील हाँ, बेटर एट हाँ. योर Yes. आंटीज प्लेस, वहां जाओ।
जो ओके आपको ओके ओके। ज्यादा प्यार करे, जो आपको समझे, वहां दैट रहो। टाइम हाँ, पैम्पर बहुत करना अच्छा लगता है, लाइक इफ यू आर हाँ, गेटिंग अच्छे से पैम्पर्ड। जो आपको खिलाए पिलाए, आपको ध्यान, आपको समझे, आपको सपोर्ट करे, आपको थोड़ा रेस्ट मिले जहाँ पे। Yeah, okay, okay. So there are some queries which is very बहुत लोगों के साथ होता है इन लॉज के तरफ से। ये तीन चार ऐसे queries आए हैं, like how to react when in laws say we wished for a baby boy and you have a baby girl. डोंट रिएक्ट एट ऑल। रिएक्ट करने की Okay. जरूरत क्या है? बताओ, जिन लोगों की ऐसी थिंकिंग है, ठीक है, उनको समझाना इज नॉट एन इजी टास्क, राइट? क्योंकि उन Okay, yeah. लोगों की जो थिंकिंग है वो पहले से वैसी ही रहती आ रही है। सो अगर मैं होती उनके जगह तो मैं थोड़ा फनी साइड जाती हूँ हमेशा। सो Okay. आई वुड हैव आई वुड हैव सेड कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इस टाइम यही Okay, wow. पैकेज इस टाइम वी हैव गॉट नॉन रिटर्नेबल पैकेज, तो इसी से काम चला लो। Okay, yeah, यार, great. खुद का पीस ऑफ माइंड चाहिए तो यू नीड टू टैकल द सिचुएशन स्मार्टली ना। यू Yeah, नीड टू yeah, very good. Like we need to take these queries, okay, and like give a response like this, funny responses. बिकॉज But बिकॉज there are many queries like this only. How to react when you're in-laws, when you're नो, in-laws. आई वुड से डोंट रिएक्ट। सैनिटी इसी को बोलेंगे, क्योंकि जितना Okay, यू विल रिएक्ट, खुद का माइंड खराब होता है, खुद का ही दिमाग आपका खराब होगा। आर्ग्यू करोगे, फिर वो कुछ बोलेंगे। सो एंड आई बिलीव कि दे आर, but मतलब इस there is पॉइंट पे। this thing also कि अगर react नहीं करते हैं and they keep saying, तो it gets into your mind and अचानक से burst out हो जाता है. Isn't this thing true? बस्ट आउट एक दिन होता है ना, तो करना भी चाहिए। ज्यादा सीधा बन Okay, के okay. बिना काम नहीं चलता। किसी दिन Yeah, तो yeah, यू yeah, हैव yeah. टू रिएक्ट, यू हैव टू शो देम कि नहीं भाई, इतना भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, बट यू नो योर फैमिली, यू नो हाउ टू हैंडल देम। Yeah. ज्यादा मेरा सैनिटी से ये पर्पस था कि खुद के माइंड में चीजों को कैसे नॉर्मलाइज करो, खुद की कैसे शांति लाओ, सबसे पहले तो ये है। तो इसके लिए Okay. है कि खुद के माइंड तक उनकी बातों का असर ही ना होने दो ना। Okay, yeah. Yeah, हाँ। this is true. Okay, so ठीक है, that reaction was very, feasible for that thing. But color of a टेल baby देम boy, if बेटर you're बेटर लक नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम तो देखते but हैं क्या होता है। if they ask about, if they say talk about color of your baby, why is your baby's color brown, not white? So how to react on this? According to you. आप होते तो हाँ, क्या तो करते? सपोज मुझे कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगी यार, आपके ही जीन्स आए हैं आपकी इसमें। जैसे कि है। और अगर शी इज Okay. फेयर, शी और ही इज फेयर, जो मुझे ऐसा बोल रहा है, तो Okay. आई उसी की फैमिली के किसी का नाम मैं बताऊंगी, एंड आई टेल कि इसका कॉम्प्लेक्शन आया है मेरे बेबी में। Okay. No, okay, so this is the perfect answer for this. Okay. And there's चुप हो one more जाएगा thing. यार, अगला ना चुप हो जाएगा, कि And ठीक है, and उसको खुद they को won't शर्म आ query, जाएगी। they won't query, they won't taunt this. ऐसा कुछ taunt नहीं करेंगे आगे से. ये भी है. हाँ, किसी और Okay, को भी नहीं so करेंगे यार। there is one more reaction which we want you to give. When your in-laws say we will not accept the girl child, and this is hurting, just after delivery, if you hear these type of things, we are not going to accept the girl child. So what would you गर्ल like to say? चाइल्ड, वही सेम बॉय वाला आंसर कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम, आप नहीं, अगली but बार देख के that बोल। is at least that is we wished for a baby boy is a taunt, okay. But this is we are not going to accept the girl child. So this is a tougher तो one. टफर, वेरी टफर। एक्चुअली आई कैन अंडरस्टैंड कि एक माँ को कैसा लगेगा ये सुनने के बाद में। And it's not हर her fault, obviously. ऑब्वियसली यार, अब And being यूजुअली क्या and होता है। getting a baby girl is not a fault basically. It's a blessing obviously. But there are people who doesn't understand. यही चीजें तो दिमाग में बैठ जाती है after delivery. यही चीजें होता है कि अरे they are talking like this, they are talking like this. एंड तो इसी से डिप्रेशन बढ़ता है, जब आप इसी से लोगों की ये डिप्रेशन या फालतू अनवांटेड नोज जब बीच में आती है ना, तो या तब बहुत असर होता है। और एक माँ को, क्योंकि शी this इज leads गोइंग to थ्रू postpartum depression and 100 all. ऑफ इमोशंस, इतना हार्मोनल डिसबैलेंस ऑलरेडी है उसकी लाइफ में, उसके बाद में लोग ऊपर से और आ जाते हैं, हॉस्पिटल में ही बैठे बैठे ऐसी बातें करते हैं। यार, ऐसा लोगों को समझाना सीरियसली इजी नहीं होता। मतलब अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता
तो मतलब मेरी फैमिली तो ऐसी नहीं है, दे हैव सपोर्टेड अस अ Yeah. लॉट, लाइक वी हैव कृषा आल्सो, एंड दे वेर वेरी हैप्पी। तक्ष के साथ जितने हैप्पी थे उतनी कृषा के साथ वी आर हैप्पी, तो ऐसा कभी Krisha is किसी के your? साथ नहीं। शी इज माई निस, माई Okay. I सिस्टर इन लॉ thought, की बेटी। acha, I thought you have a girl child too. या Okay. शी इज माई सेकेंड चाइल्ड ओनली। तो वैसे ही समझ लो। Okay, okay. Yeah, that is या how you reacted, huh? तो बस अगर सपोज मेरे साथ होता तो मैं सेम बोलती यार फिर से कि अब ये नॉन रिटर्नेबल ही पैकेज है मेरा, तो यार इसको एक्सेप्ट करो। मतलब मैं फिर भी अपना दिमाग नहीं खराब करती। सपोज इफ आई गेट प्रेग्नेंट सेकेंड टाइम, जो मैं नहीं होंगी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड कि हमसे ना हो पाएगा, मैंने एक पोस्ट भी लिखा है। बट बट सपोज ऐसा मेरे साथ होता है तो आई इमेजिन कि कोई मुझे ऐसा बोल रहा है, तो मैं अब तो इतनी प्रिपेयर्ड हूँ क्योंकि मैंने अपना माइंड इतना सेट कर लिया है। तो ऐसा कुछ होता है तो मैं अपने आप को फर्क ना पड़ने दो, जो लोगों को सोचना है उनको सोचने दो, Yeah, होगा because there is सम। someone, oh, ये कोई लिख रहा है on live. Same is happening with me. I have two girls and pregnant again. But I'm really tensed. So, बहन do you want to pick बिल्कुल something? चिंता ना करो, प्लीज डोंट बी टेंस्ड एट ऑल, डोंट पैनिक। जिनको जो बोलना है जो बोलेंगे। आई Girls are वी helping. आर वी आर फोर, मतलब हम लोग चार बहनें हैं, ठीक है। मेरे पापा उस जमाने के हैं, बट हमारे घर में किसी ने, माय पापा ऑलवेज सेज कि ये मेरे सब बेटे हैं, बेटियां जैसा, बेटा बेटी कभी दे हैव नॉट डिफरेंशिएटेड। सो Yeah. तो मेरे पेरेंट्स ने ऐसा कभी नहीं किया, तो मैं बेसिकली तो ज्यादा अच्छे से खुद भी नहीं जानती हूँ कि कैसे टैकल करें, क्योंकि आई हैव नॉट सीन दैट फेज इन माय लाइफ। Yeah. बट आई नो ऐसे लोग बोलते हैं, ये बेटा बेटी का बहुत ज्यादा चलता है। तो बस यार अपने दिमाग में ना वो चीजों को ब्लॉक कर दो, उनको उन पर ध्यान मत दो, मैं यही बोलूंगी। You know, जस्ट एंजॉय when योर मदरहुड। I can recall this thing, when I was pregnant, I used to go to a doctor. वहाँ पे I saw there was a lady whose husband was in Dubai. She had already three kids, yeah, three girl kid, and she was expecting a boy, and she was so sure कि अब मेरा husband आके मुझे लेके जाएगा because I'll be giving birth to a boy. So this happens. This is in India. This is too much in India. So, but यस यस, दिस we need हैपेंस। to, yeah, we सी need to give a good response to these type of people who thinks कि एक्चुअली, boy. हाँ देखो, अब हम भी चार है अगर, तो ऐसा तो नहीं कि मेरे पेरेंट्स भी दो के बाद रुके नहीं ना, थर्ड या फोर्थ उन्होंने किया, बिकॉज कहीं ना कहीं दे वेयर एक्सपेक्टिंग बॉय। या तो इसलिए भी कि सोसाइटी का प्रेशर और And फैमिली का there is प्रेशर। one truth, there is this truth, कि girls won't stay with them. Okay, boys also won't stay with them, but yeah, girls they can fly away and boys they have to come back. एक ये thing है. तो I guess there is this thing that is why they used to think this कि नहीं एक boy यस, चाहिए. एंड दिस But इज, for now this is not correct for a boy or a girl, right? Girl ho or करेक्ट, boy ho, both will fly away. So एंड दिस I इज don't हाईली think. हाईली डिबेटेबल टॉपिक, एक हमको सेपरेट सेशन ही रखना पड़ेगा इसके लिए, तो गर्ल या Yeah. बॉय। Okay, so just those who are not accepting your girl child, you also don't accept them. From my side, don't accept them too. सेम सेम Why do सेम you सेम, need ऐसे ही them? करो। Okay, so how to react when your in-laws start watching horoscope when you're still in hospital with the newborn? Yeah, this is ओ true. माय गॉड, मेरे कितने रिएक्शन चाहिए सबको। That they So need reaction. yes, no thanks for this question. So I understand, some says कि इसका मंगल हाय है, चंद्रमा भारी है, यार ये ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ है, उस नक्षत्र में पैदा होना चाहिए था, ये सही टाइम पे पापा को पैदा नहीं काम हुआ। करेगा and all. Yeah. So many हाँ people. हाँ, ये ऐसे भाग्यशाली है और पता नहीं कितनी बातें होती है, बट Lucky is फिर a भी good मैं thing, but there बोलूंगी are sometimes when they say the kid is unlucky, so that is intolerable for a mommy, right? यार, अगर आप मतलब
ऐसे बोलना इज नॉट अ राइट थिंग, बट अगर ऐसा कोई आपको बोल रहा है ना, जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ, मैं उठा के ना कुछ फेंक के मारूं उनको, जो मेरे को ऐसे हाँ. बोले अनलकी। मतलब मुझे इतना गुस्सा आ जाता है जब मेरे Yeah, बच्चे के ऊपर obviously, कोई 9 months you are बात carrying and you're saying this kid is unlucky. So obviously, हाँ, हाँ, बट this is स्टिल the truth अगर reaction, correct reaction या actually. पर अगर अपनी शांति चाहिए तो फिर से यार देखो, हमेशा चुप रहना इज नॉट ओके, बट कभी कभी उस माहौल को देख के यू हैव टू स्टे क्वाइट, बिकॉज उनके हॉरोस्कोप देखने से क्या हो जाएगा? सपोज दे से कि चंद्रमा भारी और कुछ है, तो उनके बोलने से क्या हो जाएगा? यू थिंक दैट मैं अपने बच्चे की लाइफ बनाऊंगी ना, इनको जो Yeah, बातें करनी करने दो। बी पॉजिटिव ऑलवेज, कुछ नहीं होता yeah, किसी yeah. के बोलने से। Okay, yeah. और फिर Let भी कुछ people talk. ज्यादा Yeah. लेवल से बोल रहे हैं तो फेंक मारो यार फिर वहीं पे। Yeah, okay. Okay, so let's actually come to the point. Sanity after 15 days. What are the tips you want to say? How to get back to sanity after 15 days of delivery? Some tips you want to ओके, suggest. यस यस, बहुत सारे टिप्स है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि यू एंड योर हस्बैंड शैल बी ऑन सेम पेज टू अवॉइड Okay. एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। लाइक मेरे और मुकुंद के में हम लोग स्टार्टिंग से एक टीम थे। सो Yeah. कभी भी That's equal लाइक parenting, right? Yes, हाँ. he was more possessive than me. So Yeah. कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम ही आपस में लड़ रहे हैं तक्ष को लेकर। हम्म. तो हम्म. एक तो ये कि बी ऑन द सेम पेज, डोंट हम्म. फॉलो अनवांटेड इलॉजिकल रिचुअल्स। सबसे ज्यादा दिमाग खराब यही करते This हैं। is very important. Yeah, yeah. डोंट फॉलो अननेसेसरी मिथ्स। हम्म. आई नो अभी भी इतने फैमिलीज में कितने अजीबो-गरीब तरीके के मिथ्स होते हैं। सी, इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट इंस्टिंक्ट ना कि ये सही नहीं हम्म. है, डोंट फॉलो Don't do दैट, that. ट्रस्ट योर हम्म. डॉक्टर। हम्म. फिर कुछ बेसिक ऐसा है कि ईट गुड, फील गुड जो बोलते हैं, बस वही करो। अच्छे से खाओ, खुश रहो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओनली सेट योर हैप्पी डोज ऑफ अफर्मेशंस कि आई एम द बेस्ट मॉम फॉर माई किड, बिकॉज हम्म. आपसे ज्यादा तो कोई अपने आपके बच्चे को प्यार नहीं कर सकता ना। तो Yeah, यू yeah. आर द बेस्ट। फिर कुछ ऐसा है कि देखो, इट इज वेरी टफ कि 10 डेज 15 डेज में ही ऐसे बोलना कि आप थोड़ा बाहर चले जाओ या मी टाइम निकालो, थोड़ा टफ होता है। बट फॉलो योर बेबीज रूटीन, ट्राई टू गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ विच यू वेयर फॉलोइंग बिफोर प्रेगनेंसी। जैसे कि इफ यू यूज टू डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, so start doing it again. I know you Again. are sleep deprived, it is Yeah, tough, yeah, but exactly. if There's this query to how to get back to normal. There's so much of different things like night feeding and sleep deprived things. So how to get back to normal? yeah, see, this is the super exhaustive period in mom's life. Yeah. Please trust that this phase will also uh, pass. It won't last longer. जैसे Okay. कि see, sometimes it happens ना कि we do spend whole night sometimes to binge watch an interesting series on Netflix। Yeah. और Yeah. तो ये तो अपना बच्चा है यार, समझ लो कि दिस इज लाइफ की प्रीशियस सीरीज। तो इसको भी कुछ entertaining चाहिए. हाँ, Yeah. इसको Yeah, एंजॉय enjoy. करो। जैसे सी, आई यूज टू बिहेव लाइक एन आउल। एक दिन क्या Okay. हुआ, ऑलरेडी स्लीप डिप्राइव तो होते ही है हम, तो एक बार Uh-huh. हुआ कि आई वॉज फीडिंग तक्ष। वो भी लाइक फीड लेते लेते ही स्लेप। मैं कब से सो गई मुझे पता नहीं चला, ही वॉज ऑन माई लैप। एंड सडनली फिर जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि अरे वो एकदम गिरने की पोजीशन में। एंड मुझे इतना गिल्ट हुआ कि आई डिडंट गिव हिम बर्प, और वो ऐसे सो गया, उसकी गर्दन ऐसे है। आई टोल्ड माय हस्बैंड द अदर डे। तो उसने तो मुझे पहले तो कंसोल करने की कोशिश की कि चल ऐसा होता है, ठीक है, Yeah, this डोंट might टेक have एनी happened गिल्ट। with so many moms. Yeah. यस, बट फिर मुझे ऐसा रिपीट नहीं करना था। सो ही सजेस्टेड मी टू वॉच एनी सीरीज कि तू कुछ देख ले। Oh, उस टाइम wow. लाइक उस टाइम इंस्टा तो था नहीं कि मैं किसी से चिट Okay, चैट yeah, कर लूँ। अभी आई सी yeah. दैट बहुत मॉम्स बोलती है कि चल इसको फीड कराने उठी हूँ, अब हो गया, नाउ आई एम स्लीपिंग। And then, yeah, बट yeah. तब तब ऐसा एंटरटेनमेंट मेरे पास नहीं Moment था। while it तो does happen. Yeah.
हाँ, सो यार बस एंजॉय करो ना ये टाइम को भी, चला जाएगा जल्दी। अ, अभी आर बेबी नीड्स अस, तो बस उसको टाइम दे दो थोड़ा सा, थोड़े दिन की नींद जानी है, तो इट बस वोंट वही कम है। बैक, दिस टाइम वोंट कम बैक, तो बस उसको यस, एंटरटेनिंग लेना है बेसिकली, नॉट एज अ यस। मेंटल प्रेशर. So it says mental pressure before and after delivery. So what do you want to say about the pressure? Delivery से पहले कितना pressure होता है? How will I handle this? How will I do this and that? तो how to यार get that back? हाँ सच में पीस आ बिफोर जाए. वाला, जस्ट बिफोर आफ्टर डिलीवरी वाला प्रेशर तो शायद ऐसा होता है क्या, मतलब मेरे साथ हुआ था कि यार मुझे एनेस्थेसिया का इफेक्ट होने से पहले डॉक्टर ने मेरा पेट काट दिया तो या या मेरे पेट में ही उन्होंने कैंची रख दी तो, या मेरा बच्चा हॉस्पिटल में एक्सचेंज हो गया तो सीरियसली अरे मैंने this अपने was my हस्बैंड God. को This बट happens with so यार many moms, I guess. बट यार इतनी लाइफ हमारी फिल्मी नहीं है ना, ये सब फिल्मों में होता है, इट वोंट हैपन विद अस। Okay, सो okay, okay. सो No, it यार didn't happen फिर with me. मेंटल I प्रेशर। took very nicely. I did a buy and then went to OT. But yeah, बाहर में जो लोग थे, they were like कि नहीं मेरे को यहीं पे खड़ा रहना है, कहीं बेबी एक्सचेंज ना हो जाए ना this happen. यार ऐसे ख्याल मुझे भी आए थे, तो ये क्वेश्चन से आई अंडरस्टैंड कि ऐसा क्वेश्चन है कि अगर Okay. मेंटल प्रेशर बिफोर डिलीवरी, बट ठीक है, ज्यादा पैनिक भी नहीं होना चाहिए, इसे कहीं ना कहीं आपको हार्म करे अगर ख्याल आते हैं तो इट इज वेरी नॉर्मल, आई थिंक सबको आते हैं कि बच्चा Yeah, एक्सचेंज हो yeah, गया तो। yeah. और यार आफ्टर डिलीवरी तो हम पूरे मेंटल हो जाते हैं, जैसे आई टोल्ड यू इन द स्टार्ट ऑफ द सेशन। सो जैसे मैंने बोला कि मैं तो एकदम मंजोलिका थी, तो मतलब कुछ नहीं समझ आता, योर होल लाइफ गेट्स चेंज। तो Okay. अ, बस ये है कि डोंट एवर फील दैट यू आर लेस नॉलेजेबल, इसीलिए वी आर प्रिपेयरिंग अभी अपनी न्यू मॉम्स को ना कि जस्ट गो थ्रू, क्या कहेंगे उसको, ऑल दी टर्म्स, कॉलिक क्या है, अगर हाँ, बच्चा या ज्यादा अच्छा क्रैंकी and हो yeah रहा है। there is these thing, yeah, these things, okay, yeah, and this also, वो जो एक होता है bags before going for delivery, pack your bags before going to delivery and all, so does this help? Yes, it helps a lot. But क्या होता है, we pack our bags, hospital bags for newborns also, for us also. But Yeah, yeah. ये होता है हम पैक तो कर लेते हैं लिस्ट यूट्यूब पे देख के या इससे उसे देख के, बट क्या हम सच में जानते हैं कि व्हाट इज पैंट स्टाइल डायपर, व्हाट इज टेप स्टाइल डायपर, नैपी क्या Yeah, है, we need to क्लोथ know नैपी first. क्या है आजकल तो। हाँ, तो वी गेट कंफ्यूज जब कोई बोलता है अरे तुम फर्स्ट मंथ से ही इसको डायपर पहना रही हो, इसको फर्स्ट फर्स्ट डे से डायपर पहना रही हो, अभी तो क्लोथ नैपी पहनाना चाहिए, रैश हो जाता है। अरे भाई, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ रैश। अगर आप अच्छे से, मतलब सब कुछ प्रॉपर, इतने आजकल तो इतने पोस्ट है, इतने टिप्स है इंटरनेट पर भी, इफ यू विल फॉलो दैट ऐसा कुछ नहीं होगा यार, डायपर पहनाओ। तो या ठीक है, आपको नहीं भी पहनाना है, यू मतलब आप जो आपको लगता है वो सही से करो ना। अगर सपोज आपको नैपी पहनाना है, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू इजीली डू दैट, जैसे मेरे लिए नहीं था कि मैं रात को इसको Yeah, बार बार इसकी नैपी चेंज nappy. करती रहूं, मैंने डायपर पहनाया। तो ऐसी सब बातें आपको ना पहले से पता होनी चाहिए, छोटी छोटी, कि यू अंडरस्टैंड कि सब कुछ बेस्ट है, पैंट स्टाइल भी बेस्ट है, टेप स्टाइल भी बेस्ट है, आपको क्या सूट करता है, कौन आपको सा क्या कंफर्टेबल. पहनाना उसको इजी है। यस। Yeah. तो बस थोड़ा सा बेसिकली मेरा सारे बस ये टर्म्स इंटेंशन था कि को हाँ, जानना बेसिकली जरूरी है सारे बिफोर. टर्म से फेमिलियर हो जाओ कि या you need to know. कि And which कॉलिक is क्या है, best बेबी for का you. मसाज, स्लीप रूटीन क्या होता है, Okay. कैसे, मतलब मुझे तो बिल्कुल, आई डिडंट नो हाउ टू स्वेडल माय बेबी। Okay. सब पे दूसरों पे डिपेंडेंट होती थी कि स्वेडल कैसे करूं, एंड लकीली तक्ष को बाद में स्वेडल करना पसंद ही नहीं आया, तो मुझे वो सीखना भी नहीं पड़ा। Lucky. Okay, so lucky, seriously. This is mom and kids instinct, कि उसको यस, करवाना नहीं हाँ, था. ही न्यू कि मम्मा नहीं जानती तो नहीं जाने जान. दो। Great, great. हम्म, Chalo. And yeah, sleep deprive and night feeding we have already talked about. I guess we have talked about everything. Tips to get back to normal life is the same thing. We need to know about all the terms and all.
and we need to take care of ourselves, And right? trust yourself, believe. uh, And equal parenting. This yes, is very इक्वल important. पेरेंटिंग मैटर्स दी मोस्ट, बहुत ज्यादा Yeah, हेल्प before करता है before योर। delivery से अगर equal parenting करते रहे तो it will help यस, you a वी lot, आर right? पेरेंट, वी आर पेरेंट्स टू वी आर We are इक्वली pregnant पेरेंटिंग वाला, बहुत। yeah. हाँ, वही फंडा, हाँ, आजकल तो सब लोग वही करते हैं यार, ऐसी कि सब लोग आर डूइंग इक्वल आजकल लड़के पेरेंटिंग। बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं एक्चुअली. सच में। Yeah. Okay. So, or else whatever you want to talk about. Guys, if you want to ask any question, you can ask it here. Or else, Manisha, आप कुछ बोलना चाहते हो और you और want तो to say प्लीज something? गो You थ्रू want माय to पोस्ट इफ आई एम मिसिंग समथिंग हियर टू मेंशन, और आई थिंक आई हैव मिस्ड अ Yeah, लॉट ऑफ पॉइंट। she has got a post about the sanity after 15 days of delivery. It's a very important post. Please, guys, watch, go through that post. एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो you'll get to know it's a sanity thing. It's not a sanitary thing, first of all. And sanity is basically mentally peace हो जाना, mental वापस से stable हो जाना. So please understand this thing एंड too. इट इज नॉट मतलब ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है टू गेट नहीं है बैक यार. हाँ 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 हाँ, yeah, नॉर्मल। there is this thing. Is it possible to get back to normal lifestyle after 15 days? Only 15 days. यस, इट इज पॉसिबल। मैं बोलूंगी, लोग बोलेंगे कि अभी जो भी ये देख रहे हैं कि क्या पागल है, कैसी बातें कर रही है, है पागल इतना है. इजी हाँ नहीं है। हाँ हाँ, बट यार एक बार थोड़ा अच्छे से सोचो, ऐसा सोचो इफ यू आर वेल अवेयर, ठीक है, of प्रेगनेंसी में everything. Yeah. आपने सब कुछ पढ़ लिया है, आपको पता है, यू आर ट्रस्टिंग योर डॉक्टर, योर फैमिली, तो फिर यार इतनी परेशानी नहीं होगी। आप एक बार समझो, Yeah. अगर आप जल्दी से उस रूटीन पे वापस आ रहे हो, मतलब मैं तो बोलूंगी छोटी छोटी चीजें करो, एक छोटा सा मेकओवर ले लो, खुद को हम्म. लाइक नॉर्मल, जैसे आप अगर फैमिली मील साथ में करते थे पहले, तो अभी भी करो, थोड़ा सा स्विच करना पड़ेगा। इट वोंट बी इजी, आपको Make आपके your बेबी kids के sleep रूटीन के and yeah. हिसाब हाँ से, हाँ, बेबी हाँ. के हिसाब से चलना पड़ता है, And और baby sleeps बहुत for सा। most of the time. We can take out our me time, like me time in यस, at home only, but we can take out. अभी मेरे को लग रहा है, yeah, I'm recalling the days and I'm thinking used to sleep when I used to stare my baby. तभी तो कुछ और कर लिया होता. And that this is really true. This एक्चुअली is मी going to टाइम लो, help many people. मेडिटेट करो, अपने पसंद के गाने सुन लो, कुछ देख लो, बच्चा तो काफी देर उस टाइम सोता रहता है, And मतलब and and सी, that's true, मैं na. You pamper yourself with whatever you want, taking care of yourself, your skin and everything. ये बहुत लोग लेट मी नहीं टेल, करते हैं, मिस आउट कर देते हैं. बहुत लोग मैंने खुद ने नहीं किया था, एंड Same here, मैंने same with me. मैंने ये 4-5 महीने तक नहीं किया था कि मैंने अपने I'm फेस पे not कोई doing it क्रीम now नहीं too. लगाया, फेस पे कोई क्रीम Yeah. नहीं लगाया या कुछ नहीं। माय फ्रेंड वन डे केम टू माय हाउस, और फिर शी पैम्पर्ड मी लाइक एनीथिंग, मतलब उसने इतना कुछ किया मेरे लिए, मेरी इतनी मसाज दी मुझे, एंड उस दिन उसने Okay. मुझे समझाया कि मुझे खुद को भी, खुद पर भी ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा नहीं है, मतलब मैं Yeah. खुद के ख्यालों में थी कि अरे अभी मैं अगर वहां चली गई और तक्ष उठ गया, अगर उसको मेरी जरूरत पड़ी तो, बट यार आपको Yeah. पता है अभी नहीं उठेगा, ऐसे ख्याल मन में लाने से भी मतलब क्या फायदा है ना। Yeah, तो बस खुद वही पर है. भी बस फोकस we need करो, सेल्फ me time. ही नहीं, Anyhow, we मतलब have to take out this. यस। अब और ये सब चीजें ना आपको खुद ही पता होता है कि आपके बेबी का रूटीन कैसा है, आपका कैसा क्या है, है? और प्लानिंग मैटर्स दी मोस्ट, ये एक बात मैं बोलना चाहूंगी, बिकॉज हम्म. जैसे कि मैंने देखा है, बहुत ही वेग एग्जाम्पल मैं देती हूँ, ऐसा शायद ही होता होगा, मतलब पर मैंने देखा है कि ऐसा हुआ है। तो सपोज इफ योर बेबी पूप्स, तो क्या होता है, Yeah. कोई कोई मदर जल्दी से नैपी खोल देती है, डायपर खोल देती है, उसने अभी तक वो चेंजिंग मैट रखा भी नहीं है, देन शी इज जगलिंग कि अब मैं जाकर इसका वाइप लाऊं, और अब मैं दूसरा इसका नैपी लाओ इसको चेंज करवाने के लिए, उस देर में वो सब कुछ बच्चा फैला देता है वहां पे। तो यार ऐसे से तो आप हम्म. पागल हो ही जाओगे, और फिर यू विल से कि यार बच्चा पीछे पीछे भगाता है, पहले आप थोड़ा सा ऐसी चीजों पे ऑर्गेनाइज रहना Planned इज way में. वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा प्लानिंग करो, आपका जो डायपर चेंजिंग सेक्शन है उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज रखो। आई अंडरस्टैंड सब कुछ टाइम पर चीजें वापस नहीं रखी जा नहीं सकती, नहीं बट होती. हाँ. हाँ, बट जब बच्चा सो गया उसके बाद थोड़ा सा अरेंज कर लो, ताकि आपका ही काम बाद में इजी हो जाए। Yeah. Basically, we need to organize all the things to take out our time. है ना? या So,
Yeah, okay. So basically, the tips are according to Manisha. We need to take out our time and we need to do whatever we want to do according to our kids' routine. We need to make our routine. And yes, husband support is the most हस्बैंड important one सपोर्ट, here. फैमिली सपोर्ट, किसी का Family भी, support, यू basically. टॉक टू पीपल यू विल फील नॉर्मल, सबसे Yeah, yeah. ज्यादा तो वही है. Yeah, what this happens after delivery, we don't get time to talk to our friends and all. We need to take out some time and talk to our friends and all. Right. हम्म. Okay. So these are the tips, and thank you so much. Thank you, everyone. And it's easier for someone new helping you as well if you're organized. Thank you so much. Okay, so we got one tip here too. शी इज द Okay. मोस्ट ऑर्गेनाइज पर्सन हु इज कमेंटिंग दिस. शी इज माय फ्रेंड जिसने मुझे मसाज दिया था एंड हमेशा मेरे रेस्क्यू के Okay. लिए रेडी रहती है. Okay. Okay. So thanks for this thing because we got here एक story सुनने को मिली है हम लोगों को आपके वजह से. So thank you so much Manisha for taking out time and इतना छोटा सा बेबी को छोड़ के and you're taking out time and it was a wonderful session and you're looking beautiful. You don't look like a mom, छोटू सी mom you look like, you know. Oh, thank you so much, you are so sweet. चलो, take care, bye bye. Bye, thank you.